edge. So let me draw a half fish. This is a half fish. And so if this be a half fish, and these are the various half breadths. Okay. Now I can divide this half fish into these sections. Into 3 sections. And what I observe is this is aft perpendicular, this is forward perpendicular. This section from aft perpendicular going all the way up to this line, the change of curvature is very sharp. Similarly, from here to here, the change of curvature is very sharp. But in this section, the curvature does not change sharply. So on board, जहाँ पे ये the curvature doesn't change sharply, हम इसको काफी पॉपुलरली पैरेलल बॉडी लेंथ भी बोलते हैं. करेक्ट? In naval architecture, this is called as main body. तो ये main body है. This section is called as an appendage, and this is also called as an appendage. So this becomes what is called as forward appendage. This becomes what is called as aft appendage, and this becomes main body. जहां पे कर्वेचर शार्पली चेंज करता है उसको अपेंडेज कहते हैं. हाउ डू यू आइडेंटिफाई मेन बॉडी फ्रॉम एन अपेंडेज? अगर मेन बॉडी की कॉमन इक्वल इंटरवल h है तो अपेंडेज की h/2 हो जाती है, हाफ ऑफ h. सिमिलरली हाफ ऑफ h. तो अगर मेन बॉडी की 10 मीटर है तो इसकी 5 है. अगर इसकी 5 है तो ये 2.5 है. अगर ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर है. रेशियो इज basically 2:1 or 1:2, whichever way you want to call it. So that is why ये फ्रेम स्पेसिंग है. मेन बॉडी में h होती है. As soon as you go into the four-peak tank, you'll find the frame spacing becoming h/2. Similarly, when you go into the aft peak tank, you'll find the frame spacing closing and becoming h/2. Why? Because वो appendage है, ये appendage है. So ये line जो है, this is our collision bulkhead. So everything forward of the collision bulkhead is a forward appendage. That means everything in your four-peak forecastle is all forward appendage. And this is your engine room bulkhead or your accommodation brake bulkhead. So everything aft of the accommodation brake is, that means your poop deck, etc. Everything that is aft appendage. Any doubts so far? So okay? Which bulkhead is there between main body and aft appendage? The accommodation brake bulkhead. Okay, sir. Or the engine room bulkhead.
or the pump room bulkhead, whatever you want to call it. Okay. Now, supposing you are given this appendage and I ask you to find out the area of this fish. How can you find it out? By instantly. So basically मेन बॉडी में कौन सा रूल लग रहा है? सर 1 रूल नंबर मेन बॉडी में 2 रूल 2 लग रहा है. 4 हाँ 4 अपेंडेज में कौन सा लग रहा है? फॉरवर्ड अपेंडेज में तो रूल नंबर 2 ही लग रहा लग रहा है सर. रूल नंबर 2 लग रहा है. आफ्टर अपेंडेज में कौन सा रूल लग रहा है? सेम रूल नंबर 2 2 लग रहा है. तो बेसिकली मेरा अगर कॉमन रूल है रूल 2 सब में, तो इसका मतलब है अगर मैं एरिया निकालना चाहूं या हाफ एरिया जिसको भी जो भी आप कहते हैं, तो वो 3h/8 बाहर आ गया मेरा. और अंदर में मेरे को एक एसओपी चाहिए जिससे कि एक कॉमन एसओपी आ जाए पूरा. करेक्ट? तो उसके लिए मेरे मल्टीप्लायर्स क्या होंगे? सिम्पसन मल्टीप्लायर्स मेरे क्या होंगे? ये कॉमन बल्कहेड है, तो कॉमन बल्कहेड बिटवीन मेन बॉडी एंड अपेंडेज multiplier will be 1.5. Similarly, ये कॉमन बल्कहेड है between main body and appendage will be 1.5. अच्छा, मेन बॉडी में सेकंड वाला हमेशा 3 फिर 3. ठीक है. अब अपेंडेज का ये सेकंड वाला 3 है, तो इसका आधा, इसको आधा कर दो, ये 1.5 हो गया. फिर ये 3 का आधा 1.5 हो गया. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस ये 1 होना था, तो इसका आधा 0.5. फिर इधर आ जाओ, ये अपेंडेज का ये कॉमन सेम वही सेम 3 का आधा 1.5, फिर 3 का आधा 1.5 और ये 0.5. ये बन गए मेरे सिम्पसन मल्टीप्लायर. दिस इज माय कॉलम नंबर 2 ऑफ द टेबल. I'll repeat once again. मेन बॉडी एंड अपेंडेज का कॉमन बल्कहेड हमेशा 1.5. मेन बॉडी 3 अगर इसके बाद और होते तो 2 फिर 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब अपेंडेज में घुस जाओ. ये सेकंड वाला है ऑफ द मेन बॉडी, ये सेकंड वाला है ऑफ द अपेंडेज. इनको आधा करते जाओ. 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5. इसके बाद अगर 2 होता सपोजिंग, तो 2 का आधा यहां पे सपोजिंग एक और होता, वुड हैव बीन 1, फिर 1.5 एंड इसकी सीक्वेंस भी वैसी चलती रहती अगर और होते. लेकिन सर ऐसा जरूरी भी नहीं है ना कि सर मेन बॉडी में ऑलमोस्ट सेम इक्वल नहीं हो अपेंडेज भी. तो अगर ये कुछ ये ऑर्डिनेट के साथ एक आध मतलब बढ़ जाता या कम हो जाता तो नहीं, अगर रूल टू कॉमन है तो सेम चलेगा. हाँ अगर तो अभी मैं पहले रूल 2 को कर रहा हूं. सिमिलरली अगर ठीक. रूल 1 होता तो भी सेम चलता. तो रूल 1 रूल 1 रूल 1
तो भी मैं सेम यही फॉलो करता प्रिंसिपल। तो उस वक्त क्या होता रूल 1 के लिए, ये तो रूल 2 के लिए था। अगर मुझे सिम्पसन मल्टीप्लायर रूल 1 के लिए लगाने होते तो कॉमन बल्कहेड 1.5 1.5, यहाँ पे क्या आता 4 4 2 4 2 4 एंड 2 4 2 4 की सीरीज चलती रहती जब तक ये फुल ना हो जाए पूरा। एग्रीड। अब इधर आ जाओ, रूल वन कॉमन होना चाहिए, तभी हो सकता है ये जो मैं कर रहा हूं। 4 का आधा 2 2 2 का 1 आधा 2 1, फिर 4 का आधा 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, लास्ट में 0.5। फिर इधर आ जाओ, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 एंड लास्ट में 0.5। मतलब जो सीक्वेंस चलती रहती है 2 1 2 1 टिल जो मेरा रूल 1 चालू हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कॉमन बल्कहेड 1.5 होता है हमेशा, एंड ऑर्डिनेट ऑफ द अपेंडेज हमेशा 0.5 होगा, मेन बॉडी वही रहेगी एज पर विच एवर रूल यू आर यूजिंग, एंड अपेंडेज के रिमेनिंग वाले विल ऑलवेज बी आधा ऑफ द मेन बॉडी। इससे आपको एसओपी 2 मिलेगा, एसओपी मिलेगा। यू विल जस्ट स्ट्रेट अवे एरिया विल बी 3h/8 इंटू एसओपी, h/3 इसमें h/3 इंटू एसओपी। ये समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर। एनी डाउट्स? सर अगर रूल 1 एरिया फिर सर रूल मेन बॉडी का अलग अप्लाई और कर रहे हैं सर। अपेंडिजेस का अलग निकालना पड़ेगा ना? नहीं, ये एक ही शॉट में मैं लगा रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्बो रूल फॉर मेन बॉडी एंड अपेंडेज। ये मैं ये कर रहा हूं। कॉम्बो रूल कर रहा हूं मैं, मतलब जब भी मुझे अपेंडेज दी हुई होगी 99% ये वाला फंडा लगेगा जो मैं कर रहा हूं ये। सर हाँ जी, पूछो। सर अगर रूल 1 अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मेन बॉडी और अपेंडिज के ऑर्डिनेट्स बराबर ही रहो, हो सकता है 5 हो और किसी में 3 हो। तो वो बिल्कुल ठीक, तो मेरा प्रिंसिपल तो यही रहेगा। तो मतलब जहां तक आधा आधा करके जा रहे हैं, हाँ जहां ही खत्म होता है बंद कर देंगे वहां पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सर हमेशा हम पीछे वाले जो अपेंडेज है, जैसे सर हम्म, आपने 1.5 लिखा 1.5 लिख दिया है, फिर हम्म, आपने स्टार्ट किया 4 2 4 2 4 2 लिखते हैं, तो हम ये 4 से ही हमेशा हम काउंटर शुरू करेंगे इसका आधा करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सेकंड वाले से ही शुरू करेंगे, मेन बॉडी ठीक का है सर। सेकंड वाले से। चलो अगर ऊपर से देता है तो नीचे से शुरू करेंगे सर, दूसरे केस में जो ये तो सर वो हो गया। तो दोनों सेक्शन में दे सकता है ना सर ये तो। हाँ, दोनों तरफ में दे सकता है, तो सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ओके। ओके, जो सर फॉरवर्ड अपेंडेज है सर 1.5 के आगे 2 लिखा है जो आपने इन रूल 1, हाँ, तो दिस इज हाफ ऑफ 4, द वन व्हिच इज दिस इज क्लोजर हाफ टू ऑफ 4, द। दिस इज हाफ ऑफ 4। ये सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला है, तो 4 का आधा 2। ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला है, 2 का आधा 1। ओके, करेक्ट, पीछे से मतलब ना सर, पीछे का 4 to 4 हाँ फ्रॉम लेफ्ट, करेक्ट, फ्रॉम एंड लेफ्ट, इवन इफ यू आर रिमूविंग फॉर आफ्टर अपेंडेज आल्सो सेम फ्रॉम बिल्कुल ठीक, लेफ्ट ओनली। बिल्कुल ठीक। ओके, अगर सर मेन बॉडी में कम ऑर्डिनेट्स है तब भी हम अपेंडेज में 2 1 2 1 2 1 फॉलो करते रहेंगे। जब तक वो फुल नहीं हो जाता, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, सीक्वेंस वही रहेगी। ओके। ओके, ये समझ में आ गया सबको?
ओके अब ये इसके गोल्डन रूल्स लिख लो आप, ये कॉम्बो रूल फॉर मेन बॉडी एंड अपेंडेज के गोल्डन रूल्स. पॉइंट नंबर 1, the same Simpson rule, the same Simpson rule must apply. The same Simpson rule must apply in the main body and the appendage. ये पॉइंट नंबर 1 है. ठीक है, ये जो भी मैं कर रहा हूं ये तब पॉसिबल नहीं है अगर यहां पे 4 हैं और यहां पे 5 हैं, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैं कॉमन कुछ निकाल नहीं सकता. एग्रीड? यस सर, मतलब तीनों में सर एक ही रूल अप्लाई होना चाहिए तभी होगा ये. तीनों में एक ही रूल अप्लाई होना चाहिए, तभी मैं ये कॉमन बाहर निकाल सकता हूं. So this is what we are saying in point number 1. Point number 2. पॉइंट नंबर 1 दोबारा रिपीट कर देना प्लीज. सपोजिंग इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो क्या मैं ये कॉम्बो लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते. नहीं लगा सकता ना मैं, क्योंकि मेरा कॉमन फैक्टर जो है एक यहाँ पे रूल 2 है, इसमें 3h/8 लग रहा है, इसमें h/3 लग रहा है, तो बाहर तो मैं कुछ ले ही नहीं सकता. ओके सर. Point number 2, the SM for common bulkhead between main body and appendage shall be 1.5, comma, the SM for end ordinate of appendage shall be Sir, SM4? end ordinate of appendage shall be 0.5, comma, the SM for the remaining ordinates of main body shall be as per the relevant rule, as per the relevant rule, comma, the SM for the remaining ordinates of appendage shall be half of the corresponding SM of the main body shall be half of the corresponding SM of the main body when applied from the
common bulkhead, direction, respectively. ये हो गया point number 2. Point number 3. The above rules apply even when using combo with rule number 2. Sir, last one repeat करना. The above rules apply even when using combo with rule 2. ये सेम रूल लागू होते हैं अगर हम रूल 2 से भी करें या रूल 1 से भी करें, दोनों से. With rule 2 also. Okay. यहां तक कोई any doubts anybody? सर Clear एक है? चीज पूछ रहा था कि हम लोग सर हमेशा इसी डायरेक्शन में लिखेंगे, वो कैसे भी दिया है उसके मतलब नहीं है सर, किस डायरेक्शन में दिया है, फॉरवर्ड से दिया है, आफ्ट से दिया है, हम यही फॉलो करेंगे. वो कैसे भी दिया है सर. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. ठीक है. Sir, if n of main body is different from n of appendages, then also we'll put all the Simpson multipliers from the common bulkhead towards the aft or forward. Absolutely right. Okay. Absolutely right. Okay. Now, the next part of the same question. Supposing this is the diagram and I tell you length of the vessel is 100 meters. I want you to find out the n first, and therefore I want you to find out the h. So what is n? हमने फर्स्ट लेक्चर में n की क्या डेफिनेशन लिखी थी? Can you just see that please? First lecture. Sir, number of equally spaced ordinates. Absolutely right. Number of, उसको अब हमें एक डेफिनेशन और लिख लो n की. n is the number of ordinates for which h is the common equal interval. This is the second definition of n. Number of ordinates for which h is the common equal interval. All right. अब मैं गिनती शुरू करता हूं. सबसे पहला 1. ठीक है. नेक्स्ट 1.5. Next 2. What am I jumping? I'm jumping 0.5. So my n will also go in decimal. 1, 1.5, 2, 2.5. Now I'm going to jump 1h, 3.5, 4.5, 5.5. Now I'm going to jump half, 6, 6.5, 7. N is equal to
इधर से करता हूं, राइट टू लेफ्ट. फर्स्ट वन ऑलवेज 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7. Is this okay with everyone? How to calculate n? Whatever you are jumping, going to jump आगे. That will determine whether it is going to be full one or half one. So therefore, h will become consequently 100 divided by 7 minus 1, and then you know how to do it. It's okay with everyone? सर फर्स्ट वाला 1 लेना है हमेशा 1. फर्स्ट वाला हमेशा 1 होगा. फर्स्ट वाला हमेशा 1 होगा. Is this okay? सर वो n का कैन यू एक्सप्लेन अगेन सर, वो फर्स्ट वाला 1 से. पहला वाला कहीं से भी ले लो, राइट से लेता हूं. 1. अब मैं क्या जंप करने जा रहा हूं? h/2, तो ये 1.5. फिर क्या जंप कर रहा हूं? हाफ, 2. फिर क्या कर रहा हूं? 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7. सर h Is की this वैल्यू को okay? हम 1 लेके चल रहे हैं ना सर. दैट्स द 2 h/2s make 1 h. सर अंडरस्टैंड सर अंडरस्टैंड. So in this question, n is 7. Now, supposing I give you another question. Can you calculate n for me in this one? I'm giving you length as 100 meters. Nine. Anybody else? नाइन सर 9. 9 आ रहा है सर. सबका 9 आ रहा है. So therefore h will be 100 divided by 9 minus 1. I'll go from left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.5, 8. 8.5, 9. If I go from right to left, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Is this okay with everyone?
Yes, sir. Okay. Now, having found out the H, which rule will apply in main body? 1. 1. Which rule will apply in forward appendage? 1. So I have to use a combo of rule 1, a combo of main body and appendage for rule 1. So मेरे Simpson multipliers, अब आप इसके नीचे लिखो आप खुद, using the combination rules, that is your point 1 and point 2 जो आपने लिखा था, उसके कॉम्बिनेशन बना के आप इसके SM बनाओ. सर एक बार बता देंगे सेकंड डायग्राम में रूल 1 कैसे आपने डिसाइड किया, थोड़ा सा डाउट हो रहा है. मेन बॉडी में कितने ऑर्डिनेट्स हैं? तो 7. कौन सा रूल लगेगा? मेन बॉडी अगर मैं इकलौता लेता खाली. ओके सर, समझ गया. फिर फॉरवर्ड अपेंडेज में देखो कितने हैं, 5. तो इकलौता अगर लेता तो क्या रूल, कितना कौन सा रूल लगता? रूल 1. सो रूल 1 कॉमन हो गया. अब यूजिंग पॉइंट नंबर 2 जो आपने लिखा है, आई वांट यू टू राइट दी एसएम्स. कॉमन बल्कहेड 1.5, end bulkhead of appendage 0.5. ये वाला एंड बल्कहेड ऑफ अपेंडेज नहीं है, ये एंड बल्कहेड ऑफ मेन बॉडी है. तो इसका एसएम क्या होगा? 1. 1.5 लिखेंगे सर कि 1 लिखेंगे? 1. ये वाला क्या होगा? 4. 4. 4. 2. 4. 4. 2. 2. 4. 4. अब इधर आ जाओ. ये 2. इस 2. वाले का 1. क्या होगा? 2. 2. 1. 2. फिर 1. फिर 2. 0.5. फिर 0.5. इज दिस ओके विद एवरीवन? ये आपका कॉलम नंबर 2 बन गया उस टेबल का. ये जो सर 1 लिया ना सर आपने फर्स्ट वाला, व्हाई नॉट 1.5? Because this is not a common bulkhead between a main body and appendage. ये जब common bulkhead बनता है तो it is actually taking 1 from here and it is taking 0.5 from here. So that is why this becomes 1.5. ये 1.5 इसलिए बनता है क्योंकि ये 1 इधर का लेता है और 0.5 इधर का लेता है. ओके सर. That's why. बट ये इकलौता है, इसके यहाँ पे कोई अपेंडेज नहीं है, तो ये नॉर्मल अपने मेन कोर्स में चल रहा है, इसलिए. इज दैट ओके? सर सर रूल 2 हो या रूल 1 हो, जो लास्ट रहेगा अपेंडेज का रहेगा वो 0.5 ही रहेगा. अपेंडेज का हमेशा 0.5 रहेगा. That's why. So is this okay with everyone? So your area Yes, sir. over here will be h by 3 into SOP1. And मतलब हाफ फिश है तो एरिया जब करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड. अब क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द जीसी. तो इसका जीसी फ्रॉम आर्क परपेंडिकुलर यहां से चाहिए,
इसको D1 नाम दे देते हैं। सो लीवर कहां से लगाओगे? आफ्ट से। आफ्ट से लगाओगे, तो ठीक। तो लीवर फ्रॉम आफ्ट, लीवर फ्रॉम आफ्ट। पहले वाले का लीवर क्या होगा? 0H 0H। नेक्स्ट वाले का? 1H 1H नेक्स्ट वाले का? 2H 2H नेक्स्ट वाले का? 3H नेक्स्ट वाले का? 4H नेक्स्ट वाले का? 5H नेक्स्ट वाले का? 6H नेक्स्ट वाले का? 6.5H करेक्ट। नेक्स्ट वाले का? 7H करेक्ट। नेक्स्ट वाले का? 7.5 करेक्ट। लास्ट 8H। Are the levers okay with everyone? Are the levers okay with everyone? Yes sir. अगर सर फॉरवर्ड से पूछता है इन द केस तो विल अप्लाई द सेम 0.5H से शुरू करने के, मतलब 0 से So ये 0 0H, 0.5H, 1H, 1.5H, 2H, 3H, 4H, जैसे सर हम 5H, n की काउंटिंग करते हैं 6H, वैसे इसको भी करना है। 7H, 8H। जैसे n की काउंट करते हैं वैसे इसको चलेंगे, लीवर चलेगा उसी तरीके से। Is that okay? So your first moment of area will be equal to H by 3 into SOP2. And therefore, you know how to find out D1. That will be first moment divided by area. Total first moment of area divided by total area. Is this okay with everyone? Clear है? ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को भी डबल करना पड़ेगा सर, बिकॉज ऑफ दैट फिश हाँ वो तो बिकॉज हाफ फिश है तो डबल करना पड़ेगा, वो तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड। ओके